जयपाल शर्मा, JAIPAL। अगर आप हमको देखें तो हम आज के दिन में कैपेबिलिटी बिल्ड कर रहे हैं। और कैपेबिलिटी पहले अगर आप देखो जो हमारा आइडिया है ISR का, विच मीन्स डिटेक्शन ऑफ एनी थ्रेट विच इज़ कमिंग इन। फॉर डिटेक्शन ऑफ थ्रेट्स अनमैन्ड अगर से हम स्टार्ट करें तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स अगर आप लें, छोटे से अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो छोटे बोलते हैं, छोटे ड्रोन से लेके मेल क्लास ड्रोन्स हम सब बनाते हैं। हमारी कैपेबिलिटी है डिटेक्शन की। तो अगर पेनिट्रेशन अगर आप रूम के अंदर हो या इन दी एयर हो तो सब हम पेनिट्रेट कर सकते हैं, और हमारे पास उस टाइप के ड्रोन हैं। अंडर द वाटर सी डिटेक्शन के लिए हम UUV बना रहे हैं, सबमरीन विच कैन स्टे इन दी वाटर फॉर 15 days एंड डिटेक्ट इट। सो वो बना रहे हैं। सो दैट इज़ द अनमैन्ड पोर्टफोलियो। देन काउंटर ड्रोन सिस्टम, अगर ड्रोन आ रहा है हमारे यहाँ पे, उसको डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज करने के लिए काउंटर ड्रोन सिस्टम, जो आज के दिन में बॉर्डर में भी हमारा डिप्यूट किया गया है। और अब हमने एक व्हीकल माउंटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम यहाँ पे शोकेस किया है। वो भी हम कर रहे हैं, जो 15 किलोमीटर तक डिटेक्ट कर सकता है और 10 किलोमीटर तक न्यूट्रलाइज कर सकता है बाय जैमिंग, और लेज़र अप टू 1 किलोमीटर 800 मीटर्स तक वो न्यूट्रलाइज कर सकता है। आप कामिकाजी ड्रोन्स देखें अगर न्यूट्रलाइजेशन के, सो स्ट्रैटेजिक कामिकाजी ड्रोन जो 200 किलोमीटर्स तक जाएगा इन द एयर फॉर 8 आवर्स, गोइंग अप टू 15,000 फीट विद अ वॉरहेड ऑफ 16 kg, वो हमने शोकेस किया है। या एक छोटा सा लॉइटरिंग जो 1/2 kg, वो हमने शोकेस किया है। तो उस पूरी रेंज का, तो 200 किलोमीटर स्ट्रैटेजिक, 800 किलोमीटर स्ट्रैटेजिक और स्मॉल लॉइटरिंग, हम उस हर क्लास के लॉइटरिंग एम्यूनिशन बना रहे हैं। तो ये हमारे, अगर आप देखो आई इन दी स्काई, वी ऑल्सो विद DRDO आर कन्वर्टिंग aircrafts into eye in the sky, putting radar systems into it. So that is the detection piece of it. अगर आप न्यूट्रलाइजेशन में अगर आप जाए तो स्मॉल आर्म्स, जो पिस्टल से लेके लाइट मशीन गन हम सब बनाते हैं, हमने वो शोकेस किया है। हमारा एम्यूनेशन स्मॉल कैलिबर, मीडियम कैलिबर, लार्ज कैलिबर अगर आप पीछे देखें तो लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्यूनेशन पार्क is what we are developing, already making 150 million rounds of small caliber ammunition. We are exporting it. This year end we will be making 155 caliber artillery shells, medium caliber shells, so which again are for the Indian market as well as for exports. Then अगर आप missile systems देखें, UAV carried missile, UAV launched precision guided missile, which we have given to Indian Army. That is what we are showcasing. Going up to a large missile, again, that we are doing. Or a surface to air missile to counter is what we are doing. So all this capability we are showcasing, we are building capability. As of today, we are working on whatever the needs of the user would be, how we can build that capability so that we are self-reliant. Then all of this comes under with artificial intelligence, which means through border security, how do we secure our borders? We have artificial intelligence in the box which can detect, and you can tell if there is any threat coming in. So all that with artificial intelligence is what we are showcasing. See, Make in India as requirement is very close to us. Be it the present dispensation or any other dispensation, Make in India. So जो भी चीज़ हम कर रहे हैं,
We are first focusing in building, like I said, building capability, make the product in India, starting from scratch to how do we develop. We also have our own design center. How do we move from just making India to designing in India and showcase and building capability for the world is what we are doing. So अगर हम guns में जाएं जो हम आज बना रहे हैं इंडिया में और supply कर रहे हैं, which is manufactured, we are also designed where we are bringing artificial intelligence in it. So we have a design center which not just focuses on making but also designing products. See, अगर कोई भी आप कंपनी लोगे और प्रोडक्ट को इंडिया में बनाओगे, रिक्वायरमेंट इन द वर्ल्ड एग्जिस्ट. So we feel that, with that kind of capability and with our intelligence in India, anybody would get if you have the capability, would get a very good response. So yes, we have got a very good response because, like I said, our focus has been to build capability in the country, and with this capability, not just for the India, but for the globe, yes, we are getting a good response for it. उसके पास देखा था यार, ब्लैक हैंड के पास, ब्लैक हैंड का नहीं है। A 1:1 full-scale engineering model. This is not a display model. When I say engineering model, this is meant for some of the ground testing and all. So this is the brief information. The intent of displaying this particular model is to showcase the technology advances in the country. Definitely it is very important because our adversaries are already started developing this thing and then deploying their fighters, and our country should have its own stealth fighter. Indian Air Force, this aircraft will be certified in 10 years by 2034. Then by 2036 it will be inducted into the aircraft. See, so far the design, manufacturing, everything is 100% indigenous. Engine is GE 414 engine we are using it, and India has already signed the MOU for producing the 414 engines in India. So the production, AMCA aircraft production will have the indigenous produced engine. See, 5 prototypes that we are developing as part of the development phase. Depending on the production order, so the required numbers will be produced. आज मैं यहाँ पे 2 इनोवेशंस फेल किया है. ऑनरेबल रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह भी उनको भी ब्रीफ किया था. ये दोनों इनोवेशन अभी भारतीय सेना में इंडक्ट भी कर दिया जा रहा है. इस इनोवेशन का नाम, पहला इनोवेशन का नाम एक्सप्लोरर है. ये एक आईडी डिस्पोजल और कैमाकाजे आरओवी है. भारतीय सेना में हम जब आईडीज न्यूट्रलाइज करते हैं, अभी तक हम मैनुअल टेक्निक्स इस्तेमाल करते रहते हैं. अभी आरसी आईडीज का ट्रेंड काफ़ी बढ़ रहा है. सो ह्यूमन इंटरवेंशन अवॉइड करने के लिए इस इनोवेशन को बनाया है मैंने. अभी 2.5 किलोमीटर दूर से जितना भी आईडीज को आप विस्फोट कर सकते हो रिमोटली. उसके अलावा CICT ऑपरेशंस में, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में
हाइड आउट, ताकि रूम इंटरवेंशन करते हुए हमको काफ़ी कैजुअलिटीज होने का रिस्क ज़्यादा है, उसको अवॉइड करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को रेकी एंड सर्वेलेंस करने के लिए हम भेजते हैं, और जब डिटेक्ट होता है हम उसको विस्फोट करने के लिए रिमोटली कैमेकाज़े रोल में इसको इस्तेमाल करते हैं। अभी ये भारतीय सेना में ऑलरेडी इंडक्ट हो रहा है। अगले 5-6 महीने में सारे आरआर यूनिट्स, इन्फेंट्री यूनिट्स, एसएफ यूनिट्स और इंजीनियर यूनिट्स के पास ये इक्विपमेंट शामिल रहेगा। मेरा दूसरा इनोवेशन है मोबाइल रिएक्टिव माइन सिस्टम। दुनिया में जितना भी लैंड माइन्स है वो टेक्नोलॉजी बदल रहा है, हम परसिस्टेंट माइन्स मतलब प्रेशर एक्चुएटेड माइन्स इस्तेमाल करते हैं। अभी हम एक और कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, दुश्मन के इलाके में ऐसा मोबाइल माइन हम भेजते हैं, मकड़ी की तरह माइल भेजते हैं, और ये वहीं पे टारगेट्स को डिटेक्ट करेगा और उसके नज़दीक जाके ब्लास्ट होगा। इसको एक एंटी टैंक माइन के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं।